Good good afternoon, everyone. Today, your courses MNRE 15 and Block 2. Topic is Farmer Organization in Unit 4, People Participation in Agriculture and Rural Development. In this Good topic, afternoon, ma'am. good afternoon. So, have a few questions. Can I ask? Yeah, So, the assignment lasted submission date is 31st. Am I right? yeah. So, how many assignments we can submit in that 31st? Mm, sir, I don't know proper information, but you can ask to the management or WhatsApp group or as you know. Yes. In the WhatsApp group or management, we are asking and we are sending the message in that WhatsApp group, but we are not getting the information accurately or not in a proper way. The communication is not good in the WhatsApp group we are getting. So, it's difficult for us all if not getting the proper information in the WhatsApp groups. Okay, So kindly please inform early in advance if there is any need to complete the assignments or any of the classes or maybe arranging. So please inform us in advance way. okay, Good afternoon, ma'am. This is Shubham Tripathi over here. yes, I want to add some information like that Mr. Bhargav is taking for. So, in regarding that, if you permit me, so I want to share some information regarding the assignments. okay. Shall I? सर आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉपर इंफॉर्मेशन बिकॉज हम लोग को भी नहीं पता है ये बस ये होता है कि व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लें. Ma'am, actually, I'm having the information. That is something that I want to share with him. That's why, like, I'm just seeking your permission. Shall I deliver him what he's seeking for? Yes, Shubham, please you Yeah. can ask the ma'am Uh, and please share the Okay, I information. will contact to organizer and then ask you. Sorry, uh, मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद ये थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा लेट से ज्वाइन किए होंगे इस वजह से इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई या हो सकता है No, कि no, no. I was joined in early, but the ओके information we are getting a very, very late response in the WhatsApp group. That's what I am saying. नहीं एक्चुअली So if we द are getting the information on the right time, so everyone complete their assignments on the right time, and everyone getting the information for the classes. या So if they are giving the late response and the very, very poor response, so it is not good, I think. actually, Mr. Bhargav, the information was delivered very early as it is because being a student, I too have the same information that you would be also having. We Hmm. have to submit all the four assignments by 31st of May, and all the assignments have to be made, separately. Like you have not to club all the four assignments in a single PDF. You have to make four PDF for each four assignments, and you have to submit as per your course structure, like the nature of your course. If you are an online student, you have to submit it through LMS. If you are an offline student, you have to either you have to mail, like courier it to the School of Agriculture, or you have to send that scanned PDF through mail, the email ID PGCAP that has been provided. So this information Okay. has been laid down very early, like when the assignments were first open. Okay. Thanks for sharing the information, Shubham. But you can say in the WhatsApp group, every candidate is asking the same question 4 to 5 times. Yeah, But if the management is given the proper way, in the structured way of the information, if the students are not asking the 5 to 6 times every question, what I feel. In the management side, the information is not given the proper way. That is what I am saying to the ma'am. yeah. Okay, thank you very much. Ma'am, can you please inform to the management? Please provide the information to the students. So we are facing this kind of inconvenience from the WhatsApp groups or emails. okay. Thank you, madam. Now, introduction. Agriculture is a prominent occupation in India.
Nearly 60% of the population of the country depend on it up for livelihood. The concept of the development has undergone many important and significant changes over the year. Everybody knows the India जो है इंडिया में हमारे जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, मेन अकप्शन है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से ही सबको मिलता है। पूरी जो हमारी 60% जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे ही, हमारी जितनी लाइवहुड है वो सब इस पे ही डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर का मेन रोल होता है हमारे यहाँ। दो The development efforts during 1950, 1960 and 1970 were based on the topmost on the service delivery approach. The scientific and the relational planning what is hallmark and the emphasis what the centralized delivery system based on the efficiency of civil personnel as the agent of development. तो ये जो है सारा रिलेशन जो होता है, सिग्निफिकेशन का हो, रिलेशनल प्लानिंग हो, ये सब जितना भी होता है सब सेंट्रलाइज डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है, जिसकी एफिशिएंसी होती है एक सिविल पर्सनल लेवल पे एजेंट्स जो ये डेवलप करता है। तो एग्रीकल्चर को हम मेन प्रीडोमिनेंट एक्शन भी कह सकते हैं। दिस अप्रोच इज नाउ लार्जली created since the expected twinkle down the effort never took place. Important factors for the failure of the system label were the lack of reward and the punishment for development agents and the lack of political will on the part of the government. At the local level, the rural people did not feel involved there. अगर देखा जाए तो जितने विलेज एरिया होते हैं वहाँ पर ही ये सब होता है, क्योंकि वहाँ पे ही ये सब एग्रीकल्चर का ही काम है। और अगर रूरल में देखें तो वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी एग्रीकल्चर का कोई भी रॉ मटेरियल आता है तो फैक्ट्री वगैरह डालकर और फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह देकर वहाँ पे इस चीज़ को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पे जो है ये काम किया जा सकता है। द प्रेजेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट revolves and announce people and strongly believe that unless and until local people are involved in decision making at all the levels of the program। तो फर्स्टली क्या ज़रूरत होती है, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग एज वेल एज monitoring evaluation desired the implement can be achieved। Participation is used as a mean of achieve development, although its role is still critical। तो एक ये जो इसका रोल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। It is today being balanced by incorporating other concerns related to the basic needs, environment, human development, and more recently democracy, human rights, and liberalization। तो इस तरह से अगर हम एग्रीकल्चर को लेके चलते हैं तो हमारी बेसिक नीड हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, तो डेमोक्रेसी होगी, ह्यूमन राइट्स, इस तरह का जो रोल होता है ये भी प्ले करता है एग्रीकल्चर के फॉर्म में। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, हैव who share the same type of needs of the same type of problems which are not being addressed by the other organization, starting from the position of the powerlessness. It has brought about the personal and social change and the essence of the person's sense of identify. It provides opportunity for personal growth and emotional and sustenance. The experience in India shows that provision of small financial service and products to the poor people who bank linkage of SDH and contributed to the process of rural development by creating conditions that are conceived the human development. It is still presented by all these concept of participatory एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से जितना भी ये काम होता है ये एग्रीकल्चर का रूरल डेवलपमेंट में होता है और इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से ये काम करा जा सकता है। और एक इस मेन अपॉर्चुनिटी होती है, उससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है, इमोशनल सस्टेंस होता है। अब इसमें आता है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे इसमें हो सकता है, तो the word participation has been part of the developed vocabulary since the 1960s. It was
then usually understood the mean people who involved in only some specific kind of problems. The concept of participation in develop and the brain currency of last decade so largely due to failure of the trickle-down model of the development. Today, participation is viewed as integrated to all over effort. It is regarded as a process of the redistribution power in the favor of the poorer groups too, so that can equal part they have control over development process, which affects their live in any settings. People have different power, इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज अगर पीपल इंटरेस्ट लेंगे उनके रिसोर्सेज होंगे तो इस तरह से एक ग्रुप्स बन जाएंगे उनके इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे फिर वो कंट्रोल कर सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस जितना भी हो रहा है उसको अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर उसमें काम किया जा सकता है ए फेवरेबल एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू एनेबल देम टू इंटरेस्ट एंड इक्विटेबल एंड जनरली कॉलिब्रेट बेसिस अगर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट होगा बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट लेंगे लोग दोनों चीज़ अगर मिल के काम होते हैं तो एक कॉलिब्रेट होता है इसमें और इस तरह से इसमें काम किया जा सकता है और फिर एग्रीकल्चर जो है वो फिर अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी और फाइनेंशियली सबको फ़ायदा होगा Participation can be defined as an interactive social politics process motivated by the desire to meet an individual need through collective action on the mutual benefit basis. People participation may be defined as the process of giving priority to the local perspective in identifying and analyze their problems and the opportunity improving the situation through their self mobilization. The focus is on the insiders of the local people perspective. Many development interventions has been seen to create a sort of defense syndrome. With active involved the local people, it is possible not only to break the mentality of dependence but also the increase the awareness of the self confidence. अगर बहुत सारे जो लोग होते हैं अगर इसमें इसको डेवलप कर रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं तो ये एक जिसे एक एक्टिव लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा और फिर ये कोई पॉसिबल नहीं है कि ये जो है वो डिपेंड करता है कि ब्रेक ले या कुछ करे जब बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो वो इंक्रीज होगा और वो अवेयरनेस उसकी बढ़ेगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लोगों में आएगा इस तरह से फिर एग्रीकल्चर प्रमोट होएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा पार्टिसिपेशन मेक्स इट पॉसिबल टू मेक यूज ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल पीपल जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे एक फुल ऑफ नॉलेज हो और वो रिसोर्सेज उसके लोकल पीपल से भी जुड़े हुए हों अगर पीपल से जुड़े होंगे तभी वो इसमें वर्क कर पाएगा अगर नहीं है तो फिर उसको दिक्कत होती है अब जो जैसे कोरोना वायरस के बाद से बहुत से लोग एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए हैं बहुत से लोगों की जॉब छूट गई या छोड़ना पड़ा उन्हें किसी वजह से जो अब्रॉड वगैरह में रहते थे तो वो फुल ऑफ नॉलेज के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है ऐसे ही करते थे पहले फार्मर्स तो उन्हें फुल नॉलेज नहीं थी तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स करे गांव-गांव जाकर वहाँ पे प्रचार प्रसार करवाया बहुत सी नॉलेज दी तो अब बहुत नॉलेज हो गई है हालांकि फार्मर्स को पर अब जो अपना पॉली हाउस वगैरह ये सब लगाते हैं तो उसमें इन लोग को फुल ऑफ नॉलेज होती है participation is a learning process through which people can develop their capabilities अगर कोई अच्छे से सीख कर इस तरीके से काम करेगा तो फिर वो अपनी कैपेबिलिटीज को भी डेवलप कर लेगा तब भी एक अच्छे तरीके से आप एडवांटेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में इट हैज़ एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर सिंपल सी बात है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डिसीजन आप कोई ले सकते हैं अपना पर्सनल इंडिविजुअल तरीके से भी आप इसमें काम कर सकते हैं
Programs involving participation of the people are more likely to be sustained after outside funding and support are reduced withdrawn. प्रोग्राम्स जितने भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, बहुत से जो गवर्नमेंट है या बहुत से ऐसे एनजीओज हैं, बहुत से ऐसे और भी आते हैं लोग इसमें रिलेटेड जो होते हैं, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह करवाते रहते हैं। बहुत से मेले लगते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत फेमस लगता है कि रोजगार मेला, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सारे जॉब्स होती हैं, बहुत से ऐसे फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सा गवर्नमेंट करती रहती है प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो है वो इट हेल्प्स द सोसाइटी टू रिमेन इंटीग्रेटेड। ए लैक ऑफ पार्टिसिपेशन में डेवलप इन द पीपल एंड फीलिंग ऑफ द आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट and ultimately general frustration and the distance among them। और अगर सोसाइटी में इस तरह से पार्टिसिपेशन करके डेवलप करके अगर लोगों में फीलिंग ये सब लाई जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आप भी इससे जुड़ के चलें, उन्हें नेगलेक्ट नहीं किया जाए, तो बहुत सी चीज़ें इसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, करी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टिसिपेशन। अब इसकी बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। जो रूरल में रहते हैं उनको भी इस चीज़ की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो बताए जाते हैं उनको, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ऑल पीपल मस्ट बी एक्सेप्टेड एज देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग देम। तो नेचुरली पीपल को सबको सब में वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, तो सबको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे पाएंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन, there should be active participation of all people in the program and participation pattern must continue from planning through evolution। अगर एक्टिव होंगे तभी तो काम करेंगे, जो एक्टिव नहीं होगा वो उसमें कर नहीं पाएगा। और एक्टिव पीपल जो है वो मस्ट कंटिन्यू प्लानिंग ही कर पाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इस तरह से वो अपना एक काम करते हैं और फिर एक एवोल्यूशन बनने लगता है और इसमें काम शुरू हो जाता है। एग्री टू डिसएग्री, participation requires an implement and explicit understanding to agree and disagree and accept common interest to एवं personal interest। अगर एग्री है तो भी हो सकता है, डिसएग्री है तब भी उसको अंडरस्टैंड करके इसमें मनवा के काम कराया जा सकता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में इनसे काम करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग कंसेंसस। Collective responsibility for making decision made is must and should be consensus on the same। अगर बहुत ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा एक सर्कल है, तो वो एक डिसीजन बनाता है और उसमें भी फिर ये काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट इज कमिटमेंट टू द एक्शन। ऑल पार्टिसिपेटिंग पैटर्न्स मस्ट committed themselves to the action on the basis of the agree upon decision and plans। जितने भी पार्टिसिपेशन के इसमें पार्टनर्स होते हैं वो एक कमिट करते हैं कि हम जो है इसमें काम करेंगे और अपने डिसीजन और प्लान्स जो है उनका एक बेसिक तरीके से इसमें काम करके डिसीजन और प्लान्स अपना फॉलो करेंगे, तो इस तरह से उनका काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ द पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। अब इसमें फिलॉसफी भी लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलना पड़ता है, कायदे से। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, एक जो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मीन्स सैनिटाइज पीपल जो होते हैं जस्ट टू इंक्रीज द respectively and ability of the rural people to respond to development programs as well as encourage local इंटेग्रेटिव्स। जो इसमें बहुत से जो पीपल्स होते हैं वो इंक्रीज कर लेते हैं इसमें और रूरल पीपल को भी ऐड कर लेते हैं और डेवलपमेंट फिर प्रोग्राम का शुरू होता है और उसमें फिर
इनकरेज करते हैं कि नहीं आपको करना है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत से सेक्टर्स में गांव-गांव जाके लोगों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से काम करो, या उन्हें टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। इट इंक्लूड्स पीपल इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इसमें जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी शामिल होता है। Participants on their own set the direction of development, set their priorities, make decision about it, plan action and execute them. जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो डायरेक्शन डेवलपमेंट का एक तरीका, उन्हें एक दिशा समझ में आती है तभी तो वो काम करेंगे। जब एक दिशा उन्हें पता चलेगी तभी वो उसमें काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पता चलेंगी कि हम किस तरह से इसमें और हम मोटिवेट होए या काम करें, और फिर डिसीज़न लेंगे, फिर उसमें प्लान्स बनाएंगे, फिर एक्शन लेंगे। तो इस तरह से एक फ़िलॉसफ़ी के तरीके से ही, एक मेथड से ही काम करके वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट हैज़ अ गोल, एक गोल बनाना पड़ता है तभी उसमें काम पॉसिबल होता है। विच इज़ पार्टिसिपेंट कॉमनली शेयर, कॉमन शेयरिंग मेक्स ए पार्टिसिपेंट कम टुगेदर टू टॉक कलेक्टिव एक्शन टू अचीव द कॉमन गोल। कलेक्टिव एक्शन के साथ अगर काम करेंगे तो एक कॉमन गोल तभी बन पाएगा, और एक पार्टिसिपेंट उसमें आएंगे, बहुत सारे इकट्ठे होंगे तभी काम होगा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट इक्वली एंड दस नेचर एंड काइंड ऑफ द पार्टिसिपेंट डिफरेंट, कुछ सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अलग भी होते हैं और उसमें फिर कुछ डिफरेंट भी निकलते हैं। तो इस तरह से उनको भी साथ में लेके चलना होता है, ये भी फिलॉसफी लेके चलनी पड़ती है कि उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनको तैयार करें कि वो भी हमारे साथ मिलजुल के सब काम शुरू करें। People are not put top of the development agenda. They need to be organized and help to be active participant of the develop process. तो एक डेवलप प्रोसेस में पार्टिसिपेंट को लेकर उनकी हेल्प करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना के ही इसमें काम कर सकते हैं। पुअर पीपल जो होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी करते हैं इसमें। जो बहुत पुअर फार्मर्स होते हैं वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को नहीं भी उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि अगर जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो काम कैसे शुरू करेंगे, काम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्पेशल अरेंजमेंट एफर्ट्स रिक्वायरमेंट्स इस तरह से कुछ काम किया जाता है ताकि वो इसमें जुड़ें और इसमें काम करें। तो स्पेशल अरेंजमेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच एंड एंगेज देम एंड टू प्रोग्रेसिवली एम्पावर देम। पावर एंड कंट्रोल आर प्रायोरिटी टू पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। अगर पावर होगी और कंट्रोलिंग पावर उनके पास होगी तभी वो इसमें पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट ला सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। Ownership of the participant is enhanced when they are made to feel important and responsible. जो ओनरशिप जिनके पास होती है वो तो इसमें एक वाइड चेंज ला सकते हैं कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और वो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं कि हाँ इन्हें रिस्पॉन्सिबल बना दें क्योंकि इनके पास ओनरशिप है। और जिसके पास ओनरशिप नहीं है, जो पुअर हैं, वो इसमें इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। फीलिंग एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्फ help in animate from the collective strength, group action, different forms of self help groups of the people। तो कोई भी काम करने के लिए, चूंकि हमारा चैप्टर ही कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, फार्मर से इसमें जितनी भी फार्मिंग हो रही है, तो एक सेल्फ हेल्प होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। तो एक स्ट्रेंथ ग्रुप एक्शन जब होगा इसमें डिफरेंट फॉर्म्स के साथ, तो ग्रुप हेल्प पीपल ऑफ ग्रुप्स ऑफ द पीपल। The process is therefore closely held with the sustained development of the self-reliant self-help organization of the poor। फिर क्या होगा, पुअर के लिए सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जिसमें उनको हेल्प दी जा सके, और इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसमें उनको हेल्प दी जाती है ताकि वो उसमें काम कर सकें। इसमें एक चीज़ और भी इसके साथ ही अटैच है, जैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर में जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ये किस किस चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी ऑफ पीपल, जो प्राइमरी ऑफ पीपल में जो पीपल होते हैं पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं अपनी किसी वजह से, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, बट पीपल देमसेल्फ एट द सेंटर स्टेज।
पीपल इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन थ्रू द प्रोग्राम। बहुत से होते हैं जैसे जिनका स्टार्टिंग होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाद में फिर वो एक सेंटर में जाते हैं, फिर वहाँ पता करते हैं क्योंकि वो प्राइमरी स्टार्टिंग होते हैं, तो फिर वहाँ पे कंसिडर करते हैं और फिर उनके प्रोग्राम से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और काम करना शुरू हो जाते हैं। पीपल को नॉलेज भी नहीं होती है, अगर देखा जाए तो स्किल्स वगैरह भी उन्हें नहीं पता होती हैं इसके बारे में, तो फिर वो they don't know skills but we seen as a positive contribution to the program। अगर उन्हें skills नहीं भी पता है फिर भी एक अपना positive लेके चलते हैं कि हम contribution करेंगे, हम इसमें काम करेंगे, तो it should make of the people's knowledge for the effectiveness of the program of the local resources, avoid depends on the external assistant and have to build local capability। तो इस तरह से भी अवॉइड डिपेंडेंस करके वो उसमें काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसका, पीपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट तो करते हैं, बस क्या होता है इसमें मस्ट होता है एम्पावर वुमेन। वुमेन का भी इसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिस सिर्फ वुमेन्स को ही वहाँ पर नॉलेज दी जाती है। तो इस तरह से इट मस्ट सीक मैग्निस टू द रिड्यूस जेंडर by providing means by women can take part of the decision making and create transformative changes against the social and the culture barriers। तो बहुत सी जगह लेडीज़ को ही, वुमेन्स को ही नॉलेज दी जाती है, उन्हें बताया जाता है किस किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो पीपल पार्टिसिपेशन मस्ट वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका लोकल एक्शन एज अपोज टू लोकल रिस्पॉन्स। It should encourage local people to make decisions and to take action with the broad parameters of the program and opposed to maternally responsible progressive to initiate by the people by the others। अगर लोकल एक्शन लेते हैं तो लोकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग टोटल अपना काम करेंगे, बाहर के दूसरे गांव से नहीं जुड़े हैं, तो वो अपना उनके यहाँ जो भी हो रहा है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग, वो क्या उनका एक पैरामीटर है, किस तरह से वो उसमें काम कर रहे हैं, तो वो सारा उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से इसमें वो काम करते रहते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें इसमें, तो प्रोजेक्ट शुड बी क्रिएट टू द अकोमोडाइज एबिलिटी ऑफ द लोकल पीपल टू प्ले इंक्रीजिंग रोल एंड बिगिन टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अगर एबिलिटी लोकल पीपल को दी जा रही है तो उसमें वो एक अच्छा प्ले इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग रोल करते हैं और फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करते हैं और उसमें काम करना वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेटरी रूरल मेथोलॉजी, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं PRA। It is need to unite the development efforts of the planners with the needs, aspirations and the resources of the target group of sustained growth। The Calible must be made active partners in planning, execution and evolution of any program, considering the genuine need of the involvement of the farmers in the formulation of the programs, plans, taking the problems and new approach of participatory rural spiral is followed। The major change in approach is the shift to the top to bottom and bottom to top। अगर इसमें अच्छी सी प्लानिंग, अगर एग्जीक्यूशन के साथ इसमें काम हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम रिमूव हो रही है, तो इसमें वो अपना काम करते हैं और अपनी शिफ्ट चेंज करते रहते हैं। और एक मेजर चेंज आता है फिर उनमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू टॉप जाते हैं। फिर उसमें एक ही, क्योंकि उनका एक टारगेट ग्रुप बना के वो अपना काम करते हैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कि हम या तो टॉप टू बॉटम रहेंगे या बॉटम टू टॉप चलेगा हमारा। इस तरह से ये इसमें काम करते रहते हैं। अगर
रिसोर्सेज अगर देखा जाए अगर इनका विलेज में, तो assistance of the villages themselves. It helps to assess the option of how to utilize these resources for the sustained development, to rank priorities as the villagers see them, to record all the information and prepare a plan of action. It is very flexible approach to make use of varying situation. It can be used to plan, execute, monitor and execute programs. अगर इस मेथड से अगर ये काम करते हैं तो बहुत सारे इसमें जो होते हैं डेवलपमेंट होते हैं, उनकी रैंक जो होती है वो अपनी प्रायोरिटीज़ देखते हैं। तो जैसे बहुत सारे देशों में भी ये देखा जाता है कि किसके यहाँ किस देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह से देखा जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कौन सा स्टेट आगे चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्लानिंग करके एक्शन करके काम किया जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो बहुत सारी सिचुएशन भी इसमें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो मॉनिटर करना पड़ता है, एवल्यूट करना पड़ता है प्रोग्राम को। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर चला जा सकता है जिसमें विलेजर्स का मेन रोल होता है। अगर कहीं सर्वे करते हैं अगर कोई लोग, तो उसमें भी ये कंडक्ट करते हैं, उसका कलेक्टिव डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है आउटसाइड में जाकर, फिर उनकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्वेश्चनरीज होती हैं उनके संग, एंड द रिजल्ट ऑफ विच आर नेवर शेयर्ड विद द climate and the simply used to prepare programs for them। तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी उनसे किए जाते हैं, आपने कैसे ये किया, कैसे हुआ, प्रोग्राम्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें लाके ग्रोथ का पता करते हैं कि कहाँ पे किस तरह अच्छा सा काम हुआ है। They can suggest their own plans for solving their problems since the information collected can be cross-checked then and with their groups. The information is more reliable and authentic. Some important PRA technique। अब इसमें बहुत सारे जब इस तरह के इसमें काम शुरू हो गए हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा शुरू हो गई होना, और फिर उनके प्लान्स पूछे गए, सॉल्विंग प्रोग्राम्स रखे गए कि ये वाले क्वेश्चन होंगे, इस तरह से इस पे काम होगा। तो फिर बहुत सारी टेक्निक भी यूज़ की गई, बहुत सारा फिर डिस्कशन भी हुआ। तो अगर इसका अगर विलेज मैपिंग के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, तो विलेज मैपिंग में क्या हुआ, विलेज मैपिंग में इनका जो नेचुरल रिसोर्स था वो देखा गया, जैसे रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, टाइप्स ऑफ सोल हो गया। इस तरह से इसका एक विलेज मैपिंग बनाया गया कि अगर ग्रोथ हुई तो उसका रीज़न क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, आसपास कौन सी रिवर है, फॉरेस्ट है कि नहीं है, और टाइप्स ऑफ सोल की सारी चेकिंग हुई कि कैसी मिट्टी है, कैसी उर्वरकता है, कैसी ग्रोथ दे रही है। तो इस तरह से एक डेप्थ में जाके ये सब काम शुरू हुए, एंड देन विजुअली ऑन द मैप ऑन देयर ओन वे, और एक मैप बना के इस पे काम शुरू हुआ। दिस हेल्प बोथ द विलेजर्स एंड द प्रोग्रामर्स टीम and village resources on their location. The mapping exercise is done by the villagers themselves and all the micro details of the village get triangled and the correct on the map itself through the discussion among the villagers. Generally, this type of method is prepared. Types of method map are prepared. तो उनसे जब डिस्कशन विलेजर से किया गया, उनसे सब पूछा गया, एक मैप बनाया गया, तब एक माइक्रो डिटेल्स निकल कर आई जिससे पता चला। ये तो हो गया विलेजर मैप। अब आता है आपका सोशल मैप। सोशल मैप में जो विलेजर्स थे उनसे लोकेशन उनके आसपास की देखी गई, स्कूल्स, हॉस्पिटल हो गए, जैसे हाउसेस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक हो गए, डिस्पेंसरी हो गई। तो इस तरह से एक सोशल मैप बनाया गया। And while drawing this maps, the villagers can describe and discuss characteristics of the discussion of the household and caste-wise distribution। तो एक गांव में ग्रोथ के लिए इन सब रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इसके अलावा इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। जितने भी सोशल हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, हाउस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, तो इन सब चीज़ों का भी एक मेन रोल होता है। तो इसको भी एक मैप पे ड्रॉ करते हैं
और फिर जाके फिर डिस्कशन करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनके कंडीशन हो गए, तो इस तरह से। और गांव में चूंकि जो गांव क्या, वो तो ऑल ओवर इंडिया ही पूरा सब मिलजुल के रहते हैं, सब कौन किस कास्ट का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक कास्ट वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन भी, चार्ट भी तैयार किया जाता है, किस गांव में कितनी पॉपुलेशन है, कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, तो इस एक हाउस होल्ड्स का भी एक बना लिया जाता है एक चार्ट। तो इस तरह से एक सर्वे किया जाता है, वहाँ पे एक सोशल मैप निकाला जाता है। फिर आता है रिसोर्सेज मैप। अब अगर हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करें तो इसका एक रिसोर्स, एक मैप तैयार किया जाता है कि किस तरह से एक रिसोर्स कर सकते हैं इसको। तो जो विलेजेस हैं वो ड्रॉ करते हैं एक लोकेशन, एक नेचुरल रिसोर्सेज की, और फिर क्या करते हैं, सच ए लैंड यूज पैटर्न, क्रॉप्स, ग्राउंड, रिवर्स, टाइप ऑफ सॉल्स, पॉन्ड्स, ट्रीज, और जितनी भी इरिगेशन रिसोर्सेज हैं, टाइपोग्राफी है, इस तरह से वो एक विलेजेस ड्रॉ करते हैं लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। और फिर उसमें क्या होता है, इसमें इंकरेज करते हैं, डिस्कस प्रॉब्लम्स करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। तो जैसे किसी गांव में पानी की दिक्कत है तो वो अपनी बताएगा कि हमारे यहाँ नदी है तो ठीक है, नहीं है तो हमें वैसे दिक्कत है। सोल्स अगर उसके यहाँ उसकी है तो उसकी चेकिंग के लिए भी होता है कि हमारे यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, जैसे भी जो भी जिसकी प्रॉब्लम हो उस पर वो डिस्कस करता है। तो एक उसका एक मैप बना लिया जाता है, फिर उस पर काम करना शुरू हो जाता है। फिर इसमें आता है सीजनल कैलेंडर। सीजनल कैलेंडर में एक सीजनल कैलेंडर भी इसका एक जैसे मैप क्या, इससे एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें एक सीजनल वेरिफिकेशन लिख दिया जाता है कि रेनफॉल कब हुई, टेम्परेचर कब कितना रहा, टेक्निक हेल्प से, और एबिलिटी ऑफ फूड, क्रॉप सीक्वेंस, क्रॉप डिसीज, लेबर डिमांड, वर्क लोड, प्राइजेस, सोशल इवेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फ्यूल कलेक्शन, इस तरह से जितना भी होता है। जैसे कोई स्टार्टिंग है, किसी ने एग्रीकल्चर में अपने उसमें खेतों में उसने काम शुरू किया, तो उसके पास पैसा नहीं था, सपोज बस ज़मीन थी, तो वो एक बैंक गया, उसने लोन लिया, एक ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो लोन लेकर अगर वो काम शुरू करेगा, 2 लाख रुपए का अगर उसने बैंक से लोन लिया, तो वो एक एक चीज़ का खर्चा लिखेगा ना, क्योंकि उसे तो बैंक को वापस भी करना है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस तरह से अगर उसने सीड्स लिए मार्केट से, या उसने इरिगेशन लिया, ये टेक्नोलॉजी का कोई सामान लिया, तो वो एक अपना लिस्ट बनाता रहेगा, और उसके बाद जो भी उसका जब ग्रो करेगी उसकी लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी चीज़ें उगी उसने उगाई हैं, उसके बाद वो उसका एक प्रॉफिट निकाल कर फिर बैंक को वापस करेगा, तब उसे पता चलेगा। इसी तरह इसमें भी जो है सोशल कैलेंडर जो है ये टेक्निक से तैयार किया जाता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि इसी तरह से ही, जिससे हम लोग को भी पता चलता है कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल हुई, कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहा, कहाँ पे कितना एबिलिटी ऑफ फूड रही, क्रॉप सीक्वेंस कितनी रही, लेबर डिमांड कितनी है। तो एक कैलेंडर के थ्रू ही पता चलेगा कि ईयरली कैसा क्या रहा, ऐसे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कैसे कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक सीजनल कैलेंडर बना के इस पे काम किया जा सकता है। और एनालिस्ट जो होते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पीपल इसमें कोऑपरेट करते हैं, तो वो इस तरह से इसमें एक व्यू बनाकर काम करते हैं, और विलेजर्स को एक सीजनल चेंजेस पे एक ये काम देते भी हैं, कुछ लोग ये काम करते भी हैं। एंड चेंजेस दैट took place over years understood clearly and from a basis for future planning, एक प्लानिंग के लिए, जिससे कोई भी चीज़ हो, वेदर ही हो गया कि वहाँ तब इतनी गर्मी पड़ती थी अब इतनी है, तो ऐसे ही इसका भी एक चार्ट बना लिया जाता है, एक प्लानिंग से सब काम किया जाता है, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पर कब कितनी ज़रूरत हुई, कहाँ पे कैसा क्या रहा। तो अगर हम एक सेपरेट ग्राफ की बात करें, अगर डायग्राम्स की बात करें, तो एक वो भी एक प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट आइटम्स के रूप में, जैसे रेनफॉल हो गया, एग्रीकल्चर लेबर डिमांड हो गया, सीजनल वेराइटीज़ हो गई। तो ये 1 4 डिफरेंट में इसका एक काम शुरू कर दिया गया कि वो शो करेगा कि कब कैसे कहाँ पे क्या हुआ।
Once the diagram is made, the information may be transferred to a large sheet of paper and triangulation of a large group. फिर जब ये ऐसा बनाया जाता है तो एक लार्ज ग्रुप में इसको एक ट्रांसफर भी किया जाता है कि इस तरह से काम इस पे हुआ। नेक्स्ट आता है आपका टाइम ट्रेंड्स एंड टाइम लाइन। अगर टाइम लाइन के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो चेंजेस भी आते हैं बहुत सारे। These techniques are very useful in understanding the changes and trends in the population, agriculture, livestock, forestry prices, interest rates on loans, etc. Time trends depends quantity changes over time and can be used for variables such as yard area and undercrops, livestock population, horticultural crops area like birth and death rate, rainfall and temperature। तो इसमें जो टाइम ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ लिखा जाएगा, जितना कुछ होता है एक टाइमलाइन बना के, जितना फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्राइजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, लोन्स हो गए, तो इस तरह से जो ये होता है इसमें सारा एक लिखा जाता है और उसमें फिर तब निकलता है कि इसमें कितनी पॉपुलेशन है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कितनी है। तो ये बर्थ डेथ रेट इस तरह से ये टाइम ट्रेंड्स एंड टाइम लाइन बना के इस पे काम किया जाता है। टाइमलाइन जो है वो प्रेजेंट में एक ओवरव्यू ऑफ द स्काई हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हैव टेकन प्लेस एंड इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन। इस समय जैसे पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, तो ये एक बहुत ज़रूरी मेन काम हो गया है पता करना कि कितना क्या है और कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे कितनी डिमांड है। इस तरह से एक टाइम जो है बनाकर इस पे टाइमलाइन पे काम कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये न्यू क्रॉप्स के लिए भी, नेक्स्ट जो आने वाली न्यू क्रॉप्स है उसके लिए भी ज़रूरी होती है, या कोई एनिमल्स का एक पोल्ट्री फार्म्स खोल रहा है या फिशरीज़ का काम शुरू कर रहा है या कहीं ड्राउट है, तो इस तरह से भी बहुत आगे फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम हिस्टोरिक टाइम की लाइन की बात करें तो एल्डरली जो पीपल थे वो वेरी यूजफुल टू शेयर देयर wealth of information. They should encourage to the major events and the change that took place when they are young। वो सब जो थे वो बताते थे और शेयर करते थे। अब आपका नेक्स्ट आता है मोबाइलिटी मैप। मोबाइलिटी मैप में डिफरेंट सेक्शन होते हैं इसमें कमोडिटीज़ के, इसमें डिफरेंट टाइप से काम कर सकते हैं। जैसे रूरल पीपल जो होते हैं वो बेस्ड ऑन सोशो सोशिया इकोनॉमिक एक्सेप्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनका। और कम्युनिटी मैप जो होते हैं वो असेसमेंट मेकिंग होते हैं, जो फार्म प्रोडक्शन होते हैं, फेचिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। इस तरह से इसमें ये काम करते हैं मोबाइलिटी मैप में, और इसमें फिर उनको एक सोशल इकोनॉमिक पता चलता रहता है। अब आपका नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स रैंकिंग। मैट्रिक्स रैंकिंग techniques reveal the villagers prefers to the attitudes towards a particular topic of interest। अगर विलेजर्स के रिवल्स की हम बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक एक इंटरेस्ट लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जिस फार्मर प्रेफरेंस ए वेराइटी ऑफ क्रॉप, vegetables, trees, spices, etc. Reason for this linking and disliking for the substantial difference in the choice the priority help to the determine the strategy। अब ये तो उसकी उस पर पसंद करता है ना कि वो डिसलाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें डिफरेंस चॉइस वो उसकी होती है, वो उसका कारण वो खुद पता करता है, और प्रायोरिटी वो खुद अपनी लेके चलता है कि वो किस स्ट्रेटजी से काम शुरू करेगा। तो मैट्रिक्स रैंकिंग अगर देखनी है तो डिस्कशन ऑन द पर्टिकुलर क्रॉप initiated the listing of all the varieties and spices is done by told the farmers। They are asked to the discuss an advantage and disadvantage with every variety list and their goods are and bad points। Then they are asked to rank these varieties by using number of seeds of leaves for different criteria। After a matrix table is made, farmers are asked to the point out which variety they consider to be among of all concerning every criteria।
अगर वो इस तरह से ही काम करेंगे, लिस्ट अपनी लेके चलेंगे, तब इसमें काम कर पाएंगे। अगर हम वेल्थ रैंकिंग की बात करें कि कैसे इसकी रैंकिंग जो है ये पता करी जाए, कैसे क्या इकोनॉमिक इसका फ़ायदा हो रहा है। तो इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है विलेजर्स की, अगर हम उसको देखें और उसको आइडेंटिफाई करें, स्टेटस ईच फैमिली का जा जाके विलेजर्स के पास, तो तब पता चलता है कि किसकी कितनी इनकम है, किसकी कितनी इकोनॉमिक है। तो एक ये भी एक प्रोफाइल तैयार की जाती है, तभी पता चलता है कि किसकी कितनी इनकम है, क्योंकि गांव में कोई इनकम टैक्स तो होता नहीं है। तो ऐसे वो उसकी एक ग्रोथ तैयार की जाती है, किसकी कितनी फसल हुई, कितना कितना क्रॉप हुआ, इस तरह से वो इस पे काम करते हैं। तो वेल्थ रैंकिंग जो होती है वो वेरी सेंसिटिव टास्क होती है वहाँ पर पता करने के लिए, जो होल प्रोसेस ऑफ द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी कंट्रोल केयरफुली, और पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही केयरफुली सावधानी से कंट्रोल करके चलना पड़ता है। Exercise helps to identify the target groups of the specific program for rich and poor landless families are। तो इस तरह के टारगेट प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और बहुत से रिच पुअर और जितने भी लैंडलेस लोग होते हैं उनके ऊपर ये पता किया जाता है, कि तभी तो पता चलेगा कि किस गांव में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है। तो इस तरह से ही एक रैंकिंग बना के ही पता कर सकते हैं। And this is also enable the community member to accept the more assistance being given to the needy families। और फिर तभी जो नीडी पीपल्स होते हैं, नीडी फैमिलीज होती हैं, तभी उनके हेल्प की जाती है। तब एक कम्युनिटी बना के कि हाँ भाई इनकी हेल्प होनी है, इनको हेल्प गवर्नमेंट से ये बेनिफिट मिल सकता है। बीपीएल में जो आते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है इसी वजह से कि भाई वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वेल्थ रैंकिंग द विलेजर शुड बी एनकरेज टू स्पीक out their own criteria for identification of the wealth, land holding, ability of the irrigation facilities, cattle holding and material possession are। तो इस तरह से उनको ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि वो जो उनका जो क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन का, कि उनके पास कैटल भी हैं कि नहीं है, या इरिगेशन की चीज़ें हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें का भी पता चलता है। जब एक वेल्थ किसी का चार्ट बनाया जाएगा तो ये भी उसमें गांव में गिना जाता है कि उनके कितने पशु हैं, ट्रैक्टर है कि नहीं है, कैटल है रखने की भी कोई जगह है कि नहीं है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें लेकर काम किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका लाइवलीहुड एनालिसिस। अब लाइवलीहुड एनालिसिस में जो है वो बिहेवियर देखा जाता है, उनका डिसीजंस देखे जाते हैं, वो किस तरह से वो स्ट्रेटजी होती है उनकी, हाउस होल्ड की डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक उनके किस तरह से होते हैं, वेरिएबल्स देखे जाते हैं, उनमें इंक्लूड देखे जाते हैं कि वो हाउस होल्ड साइज उनका कितना है, कंजप्शन उनका कितना है, लैंड ओनरशिप है कि नहीं, वेल्थ उनके पास कितनी है, और सीजनल वेरिफिकेशन कितने हैं अर्निंग के, मतलब एक ही बार क्रॉप कर रहे हैं या 2-3 बार साल में कर रहे हैं, या सिर्फ एक बार लगा के आराम से बैठ गए। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, तभी पता चलता है कंजप्शन पैटर्न उनका क्या है। इस तरह से उनका काम देख देख कर ही काम करवाया जाता है उनसे। तो ये जो है इस तरह से, इसके अलावा कुछ ग्रुप टाइप में काम होता है, जैसे ड्राइंग एक स्केच मैप ऑफ विलेज लोकेशन द फैसिलिटीज़, एक स्केच मैप बनाया और उसमें सारी लोकेशन लिख दी। नेक्स्ट इज सेकंड इज मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज प्लॉटिंग ऑफ द सीजनलिबिलिटी। अगर किसी प्लॉट में आप कर रहे हैं सीजन वाइज, तो वो प्लॉट का क्राइटेरिया देखा जाता है कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटी सी जगह है बहुत सारे लोग हैं तो बेनिफिट तो होना नहीं है ज़्यादा। तो उसको वैसे देखा जाता है। हिस्टोरिक प्रोफाइल ऑफ द विलेज, उसकी हिस्टोरिक प्रोफाइल क्या है उस विलेज की, तब उसे फ़ायदा होता है। टाइम एकोलेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़, कितने टाइम में वो कितना काम कर लेते हैं, ये
देखा जाता है, प्रायोरिटी रैंकिंग देखी जाती है कि उन्हें प्रायोरिटी है कि नहीं, या किस रैंकिंग पे हैं, या जो बिल्कुल ही ज़रूरतमंद हैं उनको पहले ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को लेकर काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर जो वहाँ के पीपल्स हैं वो रिक्वायरमेंट पीपल्स हैं, बिहेवियर टू चेंज विद इन ए गिवन सिस्टम, पार्टिसिपेशन इन रियल सेंस मीनिंग फंडामेंटल चेंज इन बिहेवियर एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन कैन टेक अंडर फॉलोइंग फोर कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है उनका बिहेवियर जो देखा जाता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। इनिटिएशन, अगर वो जो है वो प्रोसेस अनफोल्ड नेचुरली ब्रिंगिंग पीपल हैं टुगेदर फॉर ए कॉमन एक्शन, इट इज बिकॉज इन एक्टिव ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर ये जो जितने भी वहाँ मेंबर रह रहे हैं गांव में, या जो भी लोग हैं वो किस प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है, नेचुरली है या किस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो ये देखा जाता है। नेक्स्ट, कोऑप्टेशन। कोऑप्टेशन में जो पीपल होते हैं उनका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह के प्रोजेक्ट और प्रोग्राम से डिसाइड करते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, एंड पैक्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द कम्युनिटी एंड टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। The implementation requires people to participate and then they are to be involved in the activities of the programs। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, तो इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है, ये भी काम देखा जाता है इनका। And next is induction. Induction process in which power, social synthesis and propaganda are used to brainwash people into participation in the certain project or program। तो अगर ब्रेन वॉश और इस तरह से अगर काम हो रहा है तो भी ये भी एक पता किया जाता है कि ये अपने मर्जी से कर रहे हैं कि इनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या ये वैसे ही करते रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, तो इस तरह से भी इनका पता चलाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ही अपना काम करता है, तभी उस पर काम हो सकता है। तो अगर कोऑपरेटिव होके काम करेंगे तो तभी इनका काम होगा। तो कोऑपरेटिव्स, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। Farmer organize themselves to meet some of the specific needs and for which they form in core organization. The objective of the such organization are limited and many cases of the temporary nature. Similarly, men and women in the rural areas can join together to help self group. Some of the farmer organization, water user association, grow association, tree growers एंड ऑरेंज ग्रोनर्स। तो गांव में तो लेडीज हो, वुमेन हो, मेन हो, ये सब मिलके ही काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं फार्मर्स अपने, जैसे किसी का काम है ट्री ग्रोनर्स हो गए, वो ट्री का ही काम कर रहे हैं, या ऑरेंज ग्रोनर्स हो गया। आपने सुना होगा आजकल कोई कोई अपने अमरूद की खेती कर रहा है, उसके यहाँ A1 क्वालिटी के अमरूद हो रहे हैं, फिर उससे जाके लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कैसे ये हो रहा है। तो इस तरह से अब जो है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बना के इस तरह से खेती करने लगे हैं, काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। पॉली हाउस बना लिया और उसमें कोई साल भर तक खीरे की खेती कर रहा है, वही उसी की उसकी डिमांड चल रही है, वही उसका लाखों का टर्नओवर कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस तरह से काम किया जा सकता है, उसमें लोग काम करते रहते हैं। तो इसको ग्रोअर्स भी कह सकते हैं या वाटर यूजर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इनको बहुत तरीके से कोऑपरेटिव फार्मर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है। अच्छा, इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी होते हैं, यंग फार्मर्स क्लब्स भी बना दिए जाते हैं, विलेज कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन भी होते हैं, क्रेडिट यूनियंस भी होते हैं, वुमेन इंडस्ट्रियल्स भी होती हैं, सेविंग एसोसिएशन भी होते हैं। तो जब कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो सभी चीज़ें उसमें फिर देखी जाती हैं, सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं। भाई लोन भी चाहिए तो एक क्रेडिट यूनियन बना दी गई है। अच्छा, अगर
गांव में वुमेन्स का एक ग्रुप बन जाता है, जैसे अब तो बहुत सारी वुमेन्स आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें गांव में, कोई मसाला बनाने लगी हैं, ये स्पाइसेस तैयार करती हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी हो गई हैं, या कुछ और रिलेटेड गांव में ही जुड़ के काम करने लगती है। जैसे पीछे मास्क का इतना बड़ा टर्नओवर रहा कोरोना में, तो ये सब वुमेन्स ने ही शुरू करे काम, और इस तरह से एक सेविंग एसोसिएशन बना और इस तरह से काम होने लगा। Such association may be operate an individual organization, or they form their own federation in order to gather momentum and better bargaining power। और इस तरह से एक बार्गेनिंग पावर भी स्टार्ट हुई जिसमें ये सब काम शुरू होने लगे। कोऑपरेटिव जो है अगर देखा जाए तो ये एक लीगल एंटाइटीज है, एसोसिएशन करता है एक जनरल इनफॉर्मेंट फॉर्मल में, और इस तरह से इसमें एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन जाती है। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं तो एक उस पर फिर काम शुरू होता है, या उस पर कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। ग्रुप्स में काम होता है, कोई सिंगल पर्सन जो है वो इसमें काम नहीं कर सकता। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है जिसमें वॉलेंट्री एंड इंफॉर्मेशन जो है एक इंस्टीट्यूट टाइप होता है ये, और ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिसमें रूरल डेवलपमेंट और ग्रेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। और एक ग्रुप मोबिलाइजेशन वैरायटीज एंड लोकेशन टू लोकेशन, फिर वो जैसे कोई भी चीज़ शुरू की तो उसको तैयार तो कर लिया, फिर उसको कहीं जाके सप्लाई भी तो लाइन देनी पड़ेगी, तभी तो वो काम होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी, तो वो भी एक वर्क हो गया। फिर लोकेशन टू लोकेशन, अपना सामान जो आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो उसको लोकेशन टू लोकेशन भेजना पड़ेगा। फिर माइक्रो फाइनेंस या प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, लो इनकम हाउस होल्ड have come to accept in the policy and developing countries at most efficiency इंटरवेंशन टू द एविंग प्रॉपर्टी। इस तरह से ये जो काम है ये आगे बढ़ते जाएंगे और इस पे काम शुरू हो जाता है। फिर कुछ जो है वो धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी खोलने लगे हैं अब, जो अपना काम सेल्फ करने लगे हैं, तो इस तरह की भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनने लग गई हैं। और पहले ये बाहर के देशों में होती थी, अब ये इंडिया में भी शुरू हो गई है, और इस पे भी बहुत काम किया जाने लगा है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं, SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इस तरह इसमें काम शुरू हो गया है। अच्छा, इसका जो SHG का जो था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ एक स्मॉल वॉलेंटरी एसोसिएशन थी पुअर पीपल की, उन्होंने ये शुरू किया था, और इसमें इन्होंने सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड लेके चले कि इस तरह से हम इसमें काम करेंगे और इसमें हम परफेक्टली काम कर सकते हैं। दे कम टूगेदर टू द पर्पज ऑफ द सॉल्विंग देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, देयर सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। SG promotes a small savings among its members. The savings are kept with the bank. This common fund is name of SHG। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो एक कॉमन फंड तैयार किया, उसे बैंक में रखा, और उसके बाद फिर उसका एक नाम दिया SHG। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, जो कुछ पीपल्स थे उन्होंने ये इस तरह से अपनी प्रॉब्लम देखी और इस पर अपना काम शुरू करा, और उसके बाद वो फिर उसमें काम करते गए, और फिर कुछ पर्सन्स जो थे उन्होंने कंडक्ट करी मीटिंग्स एंड प्रिपेयर किया बहुत सारे प्रोसीजर जो अनेबल थे, अप्रोप्रिएट डिसीजन थे, और एंड फॉर एक्शन इज चूजिंग बाय रोटेशन। These SHG members have whatever amount they can save every month and mutually agree to contribute to a common fund to lend to members for meeting their productivity emergent conduct needs. SHGs are linked to the bank and distribute microcredit to the members and the facilities of empower and development। तो इस तरह से इन्होंने जो है बैंक से काम लिया, माइक्रो क्रेडिट्स लिए, बहुत सारे म्यूचुअल एग्रीज तैयार करे, कंट्रीब्यूशन किया, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये जब काम शुरू हुआ तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी बनेगी, फिर उस पर काम शुरू हो ही जाएगा। एंड बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द
Development of the beneficiaries, the SHG undertake the responsible for delivering non-credit service such as literacy, health and environment issues. तो बहुत सारी जो इस पे लिटरेसी पे सर्विस पे भी काम किया गया, हेल्थ एनवायरनमेंट पे भी काम किया, तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते बहुत सारे ग्रुप बन गए और उस पर फिर कंट्रीब्यूशन कर करके फिर इस पे काम करने धीरे धीरे जब छोटे छोटे ग्रुप्स बने तो इसमें काम शुरू किया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, एक काम हुआ इस पे, और द स्टेटस ऑफ द मेंबर आर पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर्स एंड डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर ऑफ द लाइफ। तो इस तरह से इस पे काम शुरू हुआ, इस पे क्या क्या बेनिफिट इस तरह से मिलने लगा। नाबार्ड था, उसने भी डिस्क्राइब किया कि SHG इज ए very good group of the rural poor voluntary born of the save their amount and countries save of the earning and mutual agree to the contribution। तो नाबार्ड सबको पता ही है, ये एक बहुत बड़ा बैंक है एग्रीकल्चर का, और उसने भी इसको कन्विंस किया कि हाँ ये जो है इस पे काम कर रहा है तो ये बेनिफिट रहेगा, इस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। इस तरह से और भी छोटे छोटे ग्रुप बने इन्हीं की तरह, जैसे प्रधान बना 2000 में, मर्यादा बना 1995 में। तो ऐसे छोटे छोटे और ग्रुप्स बने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, इन्होंने इस पे काम करा और इस पे अपना आगे बढ़ बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली। अब ये लोग जब ग्रुप्स बनाते थे तब क्या करते थे, शेयरिंग इंफॉर्मेशन करते थे, म्यूचुअल सपोर्ट लेते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते होती थी और ओवरकमिंग आइसोलिएशन होता था। इस तरह से ये काम करते करते आगे बढ़ते चले गए। एम्पावरमेंट और इंक्लूजन थ्रू द नॉन डायरेक्टोरियल डिसीजन मेकिंग, और इस तरह से इनका काम शुरू हो गया। इमोशनल एट द जो इमोशनल था इनका, इट्स टाइम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स रिड्यूस ए डिपेंडेंसी ऑन द मनी लैंडर्स से ये रिड्यूस होने लगे, उस पर डिपेंड नहीं रहने लगे। जब अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई तो फिर मनी लैंडर्स का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और जो इनकी इनकम थी ये इंक्रीज भी होने लग गई। इन्होंने जो बोरो किया था उसमें इंटरेस्ट बर्डन जब वो भी रिड्यूस होने लगा, तो ये बेनिफिट्स इन्हें होने लगे। नॉलेज शेयरिंग होने लगी, जब बहुत सारा ग्रुप मिलके काम करेगा तो पता नहीं कौन कहाँ से बहुत सारी बातें इकट्ठी होती हैं, फिर लाता है और फिर शेयर करता है, तो उससे बहुत नॉलेज भी मिलती है। इसलिए ग्रुप्स में काम करने से बहुत नॉलेज भी आपकी बढ़ती है। इंक्रीज सिविक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो और भी जो कम्युनिटीज़ थी जो सोशलाइजेशन की वो इंक्रीज़ हुई, इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ा। जब ऐसे ग्रुप्स बनते हैं तो और भी चीज़ें आके उनमें जुड़ती हैं और उसमें काम शुरू करती हैं। अब इनका जो करेक्टरिस्टिक्स थे जो SHG के, वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। जैसे स्मॉल साइज एक ग्रुप बनाना था जो 20 मेंबर्स से छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए वो ग्रुप, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जो है पीरियोडिक मीटिंग जो होनी चाहिए वो वीकली होनी चाहिए। थर्ड इज़ जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उनका लेवल देखा जाने लगा कि वो किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं, किस तरह से इसमें काम होता है। 6 मंथ्स के बाद जो है उसमें ग्रुप जो है वो एक बैंक लोन ले सकता है, तब उसको अथॉरिटी मिलती है कि हाँ तब आप ले सकते हैं, वरना आपको उससे पहले बैंक लोन भी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है, अगर किसी भी रिगार्डिंग किसी भी सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली, या बोरोवर से मिलना है, या अमाउंट कोई लोन का है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है, तो ये पूरा ग्रुप डिसाइड करता था। तो ऑल डिसीजन जो है वो डिसाइडेड बाय द ग्रुप। इस तरह से जितनी भी एनकरेज वुमेन थी टू रियलाइज दैट मे बी individuals but collectively they can use their intelligence and creativity to solve on their problems। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से या इंटेलिजेंस से क्रिएट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती थी।
एसजीएस जो था, इनका जो ग्रुप था, इनका मेन पर्पस जो था वो क्रेडिट था, सेविंग था, म्यूचुअल हेल्प ग्रुप्स था, फिर लर्निंग ग्रुप्स भी बनने लगा बाद में धीरे धीरे जाके। फिर एक्सटर्नल फैसिलिटी जो थी इस ग्रुप की वो ये थी कि इंफॉर्मेशन ये देते थे, इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप। और जो ग्रुप था, बट द ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स, इनके मेंबर्स के कंट्रोल में था। और एसएसजी जो था वो ओनरशिप ऑफ द ग्रुप बाय द मेंबर, अपना जो इनके मेंबर का ग्रुप था उसकी अपनी ओनरशिप थी, उससे चलता था। म्यूचुअल हेल्प एज द फाउंडेशन ऑफ द ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटी ब्रेक द सोशल कल्चर बेरीज। इस तरह से इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ते गए और इस तरह इसने काम करने लगा। अब इसका जो था एडवांटेज क्या था, इसका जनरल एडवांटेज जो था वो सबसे ज़्यादा ये था कि ये एक सोसाइटी के लिए एक बेटरमेंट का काम करता था एंड होल्ड एंड टू दैट पुअर पीपल इन द पर्टिकुलर आर डिस्कस इन द टॉपिक। सबसे पहले जो पुअर वुमेन्स थी उनको एक एग्रीकल्चर जो उनको चाहिए था वो एक उनको मिल जाता था कि हाँ भाई इसमें आप काम कर सकते हो। उनकी जो डिमांड्स होती थी वो उन पे काम किया जाता था, या फिर कोई भी कलेक्टिव एक्शन गेट्स, कोई भी उन्हें और भी कोई चीज़ चाहिए हो, मतलब प्राप्त करना चाहती हूँ, तो वो भी वो एसएचजी जो ग्रुप था वो उनको दे देता था। पुअर हेल्प देमसेल्फ, their own groups help them taking steps for their upper fitment। तो इस तरह से ये ग्रुप जो था वो इसमें भी काम करता था। और जो ये एस एच जी जो था वो टीच करता था रूरल वुमेन को, जो फिंगर पॉइंट्स ऑफ द सेविंग्स करती थी। ये भी उन्हें बताता था कि आपको इस तरह से काम नहीं करना है। feels and boost up the confidence when applying the bank loans, ability to take to leadership roles of the community work, sense of security। तो इस तरह से ये इसमें काम करता गया और इसमें आगे बढ़ता गया। अब इसके जो थे स्पेसिफिक एडवांटेज क्या क्या थे, स्पेसिफिक एडवांटेज इसके थे ये इंक्रीज करता था वुमेन को कि आपको ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करना है और उसका फ़ायदा उठाना है, इसका एक मेन काम ये था। इसके अलावा जो था ये सोशल स्टेटस वुमेन का एक चेंज करता था और उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटी में जाके भी एक बदलाव लाने की कोशिश करता था कि लोग जाएं और इस तरह से चेंज करें अपने आप को। डेवलपमेंट ऑफ द क्रेडिट मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इनकम ऑफ द हैंड्स ऑफ द वुमेन यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द फैमिली, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, इम्प्रूवमेंट चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रिड्यूस पॉवर्टी। Belonging to a group can change the way women think about themselves and their ability to act independently. Next is group can help feel valuable to know their needs are being considered। तो जो वुमेन की जो वो फील करती थी कि उनकी क्या नीड है, वो क्या कैसे कंसाइडर कर सकती हैं, तो वो भी ये उसकी उनकी हेल्प करता था। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ होती हैं वुमेन्स की, उनकी फैमिलीज़ की, वो भी वो अचीव करता था कि नहीं इस तरह से भी काम कर सकते हैं आप। इंक्रीज सिक्योरिटी एंड द पर्सनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी को इंक्रीज करता था और उनके पर्सनल डेवलपमेंट में भी एक चेंजेस लाता था। इस तरह से ये काम करता था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रोसेस ऑफ द एस एच जी फॉर्मेशन। एस एच जी जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता था उसके बारे में है। जैसे कि रूरल में जो भी काम होता है उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कोई अभी हम लोग बात कर रहे थे सोशल मैपिंग हो गई, वेल्थ एंड रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज रैंकिंग हो गई, टाइम लाइन्स हो गई, या बिल्डिंग रिपोर्ट हो गई। इस तरह से अगर कोई भी उसमें काम किया जा रहा है, उस पर सर्वे किया जा रहा है, तो उसका जो एबिलिटी है जो ये मार्केट में जब पता चलती है, तो उसका जो एक डेबिट सिस्टम या क्रेडिट सिस्टम निकल के आता है उसको ही हम इस बोलते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सी नीड असेसमेंट हैं, सेंसेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स हैं, ये भी सब इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो
characteristics by the number of the meeting and group discussion, resources and the social mapping undertaken on the regular basis, tools by the useful exercise, rapport building, emphasizes group, collective information. It is also useful in participatory planning and the monitoring activities. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ ये लोग करते थे उस पर मॉनिटरिंग होती रहती थी, उस पर प्लानिंग होती रहती थी, डिस्कशंस होते रहते, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन होते थे, मीटिंग्स होते थे, तो इस तरह से इस पे काम होता रहता था। कैपेबिलिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी इसमें होती रहती थी कि इनकी क्या कैपेसिटी है, क्या किस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते थे ये बहुत सारे जो है ये इफेक्टिव इंटरेक्शन ट्रेनिंग करते थे, बहुत सारे फार्म या ऑफ फार्म, ऑन फार्म या ऑन फार्म भी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन skill and productivity. After a mobilization, a group information capacity building of members and group leaders is very important. The motivation plus enable approach is a step towards empowerment. Training will design is an effective of tool capacity building. It encourages the members to take a diverse role. तो जो जितनी भी चीज़ें थी इसमें ये भी बहुत सारे रोल प्ले करते थे कि कैसी बिल्डिंग है, कैसे इस पे काम हो रहा है, इसकी ट्रेनिंग कैसी है, कैपेसिटी उस बिल्डिंग की देखी जाती थी कि ये कैसे इस पे काम हो रहा है, ट्रेनिंग जो है वो इंसेंटिव है या इंटरेक्टिव है, इसमें जो काम कर रहे हैं वो ट्रेनर्स जो हैं वो उनका ग्रुप कैसा है, वो मैनेजमेंट उनका कैसा है, ग्रुप डायनेमिक है कि नहीं है, डेवलपमेंट कैसा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती थी। नेक्स्ट इज़ ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग में ग्रुप्स जो हैं वो बना लिए जाते थे, जो फॉर्मेशन करते थे, डिस्कशन प्रॉब्लम करते थे और अराइविंग सॉल्यूशन भी करते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे भी इसमें काम होता था। जैसे कुछ एनजीओज भी थे जो ग्रुप मीटिंग कर लेते थे इस चीज़ में कि इसमें काम करना है कि नहीं, और बहुत सारे पार्टिसिपेशन या ऑल मेंबर्स जो इनके होते थे उनको भी बुला के लाते थे और इस पर डिस्कशन करते थे। रेगुलर मीटिंग सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन फॉर रिसॉल्विंग सोशल एंड द कॉमन इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस तरह से ग्रुप मीटिंग बनाकर इस पे काम किया जाता था। नेक्स्ट इज विजिट फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। बहुत सी चीज़ें ग्रुप्स में भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें अवेयरनेस के थ्रू भी बताई जाती हैं, मोटिवेशन के थ्रू भी बताई जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ जैसा भी मेंबर्स का देखा जाता है, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन वेरियस activities, fields, visit need to be the range of SHG members. These visits can be conducted of the effectively functional help self-help groups, exhibition, trade fairs. तो मैं जैसे मैंने आपको भी बताया था ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते ही रहते हैं, एग्जीबिशन भी गवर्नमेंट वाली लगती ही रहती हैं, उसमें ये बताते रहते हैं अवेयरनेस, इसके मोटिवेशन करते रहते हैं लोगों को। जब लोग जाएंगे उसे देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो मोटिवेट होंगे, तो जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो जो इसका एक्सपोजर विजिट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है मेंबर्स के लिए। और वो जो अदर ग्रुप्स कैरी करते हैं इस चीज़ को अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो उनका भी एक मेन रोल होता है। दिस इज ऑल्सो यूज ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड द बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए विजिट फॉर अवेयरनेस और मोटिवेशन उनका ग्रुप चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो फाइनेंस एंड बैंक लिंकेज। In India, microfinance in emergency and power instrument for poverty and dominated by SHG based on the philosophy of the peer pressure and the group saving and collective substance. The SHG program has been successfully in meeting needs of the rural people and strengthens collective of the self-help capacities of the poor of the local level leading of the empowerment. जो बहुत सारे सेल्फ हेल्प कैपेसिटीज़ वाले पुअर
होते हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो उन्हें डोमिनेट किया जाता है, उनकी फिलॉसफी देखी जाती है कि वो किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। फिर स्मॉल लोन्स उनको, जैसे माइक्रो क्रेडिट इन्वॉल्व्स गिविंग वेरी स्मॉल लोन्स टू द वेरी पुअर who cannot meet the basic qualification to gain access to traditional credit. The loans usually under 1100 are given to establish to expand a small, तो छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। 1100 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वहाँ पे लोन देकर उनकी हेल्प की जाती है। और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस बनाया जाता है, माइक्रो क्रेडिट रेवोल्यूशन लेके टू ब्रिंगिंग द बैंक सिस्टम टू द डोर टू द पुअर and the underprivileged of the brought about the peaceful social and economic transformation। तो इस तरह से भी इसमें काम करते हैं, जिससे माइक्रो क्रेडिट डज नॉट रिक्वायर क्लाइंट टू हैव कंट्रोल टू रिसीव लोन्स। और इसके अलावा जो है इसमें एक सबसे जो वो रेंज देखने को मिलती है वो ये होती है कि 15 to 35% जो है वो एक स्टिल चीपर होता है एक लोकल मनी लेंडर चार्जेस ऑफ 120 to 300% एट ए टाइम गिवन हायर। तो अगर बाहर से अगर कोई होता है वो जो रेंज रखता है वो 15 से 35 होता है, और बाकी जो ये मनी लैंडर्स वगैरह होते हैं इनका तो बहुत हाई होता है। तो इसको भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रहने का तरीका है, इसमें भी चेंजेस आता है। तो और जो बैंक्स हैं उनका भी रोल होता है, जो लोन होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो होते हैं उनके बहुत, बैंक भी अपने वहाँ पे बहुत सारे फेयर्स लगाता है और नॉलेज देता है कि किस तरह से आप क्रेडिट ले सकते हैं। माइक्रो क्रेडिट्स उनके जो होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, वो छोटे छोटे वहाँ पे गाँव में लगाए जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस टारगेट्स रूरल एंड द अर्बन हाउस होल्ड्स, वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनाया जाता है कि किस तरह से लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन होता है, शॉर्टर रीपेमेंट पीरियड होता है, नीड बेस्ड लोन होते हैं कि किस तरह की नीड है आपको उस तरह के लोन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होते हैं कि आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आरबीआई जो होता है मेन रोल करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट, प्रोमिनेंट जो पेमेंट होते हैं उसमें। अब एसएसडी में ही लिंकेज, जो बैंक लिंकेज होता है उसका क्या रोल होता है। बैंक लिंकेज जो होता है, बैंक जो लैंड करता है माइक्रो क्रेडिट, जो क्रेडिट जितने भी काम होते हैं वो बैंक देखता है। और बैंक जो है वो इस ये एक बहुत बड़ा लिंक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता रहता है जो गांव के लिए या रूरल एरिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह के ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। जो एसएसडी है वो मूवमेंट इन इंडिया हैज़ प्रूव दैट द पुअर कैन सेव, बोरो एंड रीपे लोन्स, hence are bankable। SHG have enabled and rural women to the save and the small amount regularly in banks. Even the banks, it would not be were able to transact small and intermittent deposits। तो एक छोटे छोटे अगर डिपॉजिट बना ले, अगर अमाउंट्स बना ले रेगुलरली जिसमें देना होता है, इस तरह से भी बैंक उनको आइडिया देता रहता है। और माइक्रो फाइनेंस जो होता है उसमें पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन ट्रेनिंग इज process of the growth and development saving of the poor guaranteed out of very small but regular contribution improve access of the poor women to bank loan in absence of the culprit। It also help in strengthening poor family resistance of the external shocks and reduce the depend on the money lenders। तो अगर बैंक से आप कनेक्ट हो जाएंगे, बैंक की सारी बातें आपको नॉलेज में आ जाएंगी, वो बैंक क्या बता रहा है, तो आप पीछा छूट जाएगा फिर मनी लैंडर्स से, फिर आप उस पर डिपेंड कभी भी नहीं रहेंगे। इसलिए गांव वालों को ये थोड़ा सा हेल्प की जाती है, बताया जाता है ताकि उन्हें ये बात समझ में आए और इस चीज़ को वो समझें। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल पीपल थ्रू एसएचजी। अगर एम्पावरमेंट की बात करें तो
जेंडर के लेवल से देखा जाए तो डेवलपमेंट इज द मोस्ट यूजफुल डिफाइंड इन ए प्रोसेस rather than an end product. A review of literature on the empowerment suggests the empowerment focus on three areas: individual action on the self, empowerment, organizational, interpersonal empowerment and the social action. तो इस तरह से ये इस empowerment बना बना के इस पे भी काम होते रहते हैं. Empowerment is a slow process, hard to measure and to establish evidence. The core of empowerment process involves the fundamental physical and the psycho-social process and changes. Mobility and establishing in public presence, women environment. तो इस तरह से इस पे ये अपना काम करता रहता है और इंक्रीज करता है, इंटरेक्शन करता है मेंबर ऑफ द ग्रुप, टेक्निक एंड जितने स्किल्स होते हैं वो उस ये मेंबर ऑफ द ग्रुप ये आपको बताते रहते हैं. इस तरह से इस पे काम करता है. अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर इशू इन पार्टिसिपेशन. जेंडर इशू भी नहीं होना चाहिए कि ये Excuse प्रॉब्लम me, है. ma'am. यस. Ma'am, there are different rural banks also, like the Bank of Baroda, Rural Bank, and like some of the banks are associated with SBI also. Just I want to know what is the basic difference between the structure of these banks and the NABARD, like how they are different. NABARD is total agriculture bank Okay, and these banks are all city persons, civilian and rural bank also. But NABARD is only agriculture bank. okay, ma'am. Thank you, ma'am. Gender issue in participation. Gender refers not to biological differences but to spatial and cultural conducted difference between men and women. They are prevailing about women such as women only domestic work. Each member of family shares benefits equally. Technology benefits both men and women equally. Women's voice is heard through their male relatives and women are in complement all certain activities. An approach gender environment must be created so that voices of the women can be heard. तो इसमें जो है जेंडर इशू कोई नहीं होता है. मैन और वुमेन दोनों इसमें डोमेस्टिक तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं. बेनिफिट्स इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी दोनों को बताई जाती है, मैन और वुमेन दोनों सुने, दोनों उसको समझें. उनमें जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी जैसे प्रॉब्लम है वो भी इतना वो इग्नोर किया जाता है कि नहीं ये दोनों के लिए है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों इसको समझेंगे. तो ये कई लेवल पे होके काम करती है. जैसे वुमेन हैव नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव लैक ऑफ टाइम एंड मोबिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्कलोड एंड देयर मल्टीपल रोल्स. तो वुमेन्स के संग तो ये प्रॉब्लम खैर रहती भी है. अब गाँव में तो वैसे भी थोड़ा सा लेके चलते हैं. तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ये चीज़ हटाई जाए, वुमेन्स को भी नॉलेज हो. कल्चर एंड लीगल जो वुमेन्स इक्वल पार्टिसिपेशन विद मैन इन द पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक एंड सेक्टर एनालिसिस, द प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड द मैनेजमेंट. तो जो इस तरह से और भी जो चीज़ें होती हैं उस पर मैन पॉलिसी मेकिंग करते हैं. इकोनॉमिक टाइप की काम जो होते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें भी जेंडर इशू नहीं होना चाहिए. कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेन करेंगे वुमेन करेंगे. कास्ट को लेके कुछ भी नहीं होना चाहिए. जैसे डिफरेंट experience shows that women from different communities and castes not only have conflict, interest, and priority, but often cannot be even brought together on a common platform due to deep rooted एंड बेनिफिशियल अबाउट ईच अदर. तो कास्ट को लेके भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में खुद आपस में जैसे बोलते हैं ना, डिसाइड कर लेते हैं कि इस कास्ट के नहीं कर सकते उस कास्ट के. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सब कोई भी कर सकता है. तो वुमेन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं पर्टिकुलर नीड्स के लिए अपनी.
रेंज ऑफ स्ट्रैटर्जी कर सकती हैं, प्रैक्टिकल मेजरमेंट भी कर सकती हैं, एंड टेकन टू ओवरकम देयर बैरियर्स। तो कुछ भी किया जा सकता है। वुमेन सिग्निफिकेंट रोल जो होता है उनका, वो बहुत प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू द करेक्ट प्रॉब्लम्स caused by lack of awareness. The development personnel need to be sensitive about the time spent and the role played by women in agriculture. The concerns of women need to be adequately attended and properly deals of the sustained development of the rural community. तो रूरल कम्युनिटी में ये चीज़ लेकर ही सोच के ही सब गवर्नमेंट अपना एक वो बनाती है स्ट्रैटेजी की, इस तरह से ही हमें काम करना है और इस तरह से क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करके चलना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या वुमेन जो एम्पावर है उसको किस तरह से हम लेके इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी बना के तब इस पे फॉलो किया जाता है और इस पे काम किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आपका जो यूनिट 5 है वो आपका है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट। ये आपका 4 चल रहा था, अभी आपका 5 स्टार्ट हुआ है। तो 5 में जो नॉन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट तो सभी को पता है, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं। एंड फिर non G for government, O for organization, that is called NGO. NGO as community based organization are not new as they fill gap left by the state. अगर कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो जो NGOs हैं ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चला के वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं और एक जो गैप्स होता है उसे फिल कर देते हैं। ये डिफरेंट टाइप में अपना काम करते हैं, उनका कोई एक भी काम नहीं हो, जैसे हेल्थ में काम कर सकते हैं, एजुकेशन में, जस्टिस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। तो कोई भी चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं ये लोकल कम्युनिटीज़ में, स्पेशली विद इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये किसी में भी काम कर सकते हैं। However, the term non-governmental organization only come into the popular use with the established in the United Nations Organization in 1945, with provision in Article 17 of Chapter 10 and the National uh, Charter for the role for the organization with the neither government for member status। तो इस तरह से एनजीओ का एक मेन रोल होता है। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें फॉर्मेशन ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से इसमें फॉर्मेट करता है। इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इज be received in association of the person or a body of individuals. Such body with a defined name and objective may be registered only one unregistered one. Legal character is acquired by only the registration of the association of the person under any of the applicable laws। तो जो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है इस तरह से ये एसोसिएशन बनाती है और इस पे अपना काम शुरू कर देती है। ये बहुत सारे हमारा जो इंडियन एक्ट है इनको बहुत सब चीज़ों के लिए फॉलो, मतलब ये रजिस्टर्ड अपना करवा लेते हैं, उस पर फिर फॉलोइंग उस पर काम करते हैं। क्या क्या होते हैं वो, एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेते हैं। आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के तो नहीं होते पर वो ट्रस्ट के होते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल ट्रस्ट के बनाकर या स्कूल्स ट्रस्ट बना लेता है और उस पर फिर एजुकेशन वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है बच्चों को। तो ये एनजीओ का ही वर्क होता है, एनजीओ ही ये काम करता है, इंडियन एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर्ड करवा के और फिर उस पर वर्क करना शुरू हो जाता है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए। और सेकंड हम बात करें तो एक सोसाइटी बना लेता है, सोसाइटी रजिस्टर्ड होके फिर उस पर वर्क हो जाता है। सोसाइटी में आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे गांव में जाके आप नॉलेज, वो सॉरी नॉलेज नहीं, आप मतलब गांव के लोगों को काम दे सकते हैं। जैसे आजकल लोग सोसाइटीज़ बना के गांव में
कुछ कुछ दिन का काम शुरू करवा देते हैं कि हम सिलाई सिखाएंगे 15 दिन के लिए, या हम पार्लर का कोर्स करवाएंगे, या हम कुकिंग सिखाएंगे। तो इस तरह की एक सोसाइटी बना के एक रजिस्टर्ड करके इसमें काम करते रहते हैं लोग। तो ये नॉन गवर्नमेंट जो है ये काम शुरू किए जाते हैं और इस पे काम होते रहते हैं और सबको इसमें बेनिफिट भी मिलता है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनजीओ की, वो क्या है? एनजीओ जो है वो such type of organization of the work with people to improve their social and the economic situation. Important characteristic of NGOs are presented. वॉलंटरी होता है एक, तो सबसे पहले ये एनजीओ आर फॉर्म वॉलंटरी एंड दे बिल्ड अपॉन द कमिटमेंट ऑफ द फ्यू पर्सन्स। तो नेचुरली कुछ लोग मिलकर ही इस तरह से एक बनाएंगे, कमिटमेंट करेंगे कि हम एक अपना ग्रुप बना रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं और उस पर फिर वो वर्क करना शुरू कर देंगे। और फिर लीगल स्टेटस, ये जब एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनेगी तो विद इन द गवर्नमेंट अंडर द सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट एंड ए फ्यू अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। तो इसमें फिर गवर्नमेंट के जो है इसे रजिस्टर्ड करती है, तब ये काम इस पे शुरू होता है, तब इसे ये एक लीगल स्टेटस माना जाता है कि हाँ इस पे आप काम कर सकते हैं, ये वैलिड है। क्योंकि ये फिर कुछ काम करवाते हैं तो अपने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कि ये वाली ट्रस्ट से हमने ये करवाया वो करवाया, तो इनका भी बहुत एक लंबा काम चलता रहता है। एनजीओ जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी काम करती है, जैसे नॉट रन ऑन प्रॉफिट मोटिव्स पे काम करती है, सरप्लस गेन करती है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाती है। इफ एनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द मेंबर्स और द शेयर होल्डर्स रीयूज फॉर द डेवलप पर्पस। फिर बाद में इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और काम हो। जैसे इंडिपेंडेंट होती है, एनजीओ आर इंडिपेंडेंट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीटेशन ऑफ देयर प्रोग्राम्स। अपना ये खुद डिसाइड ये कर सकती है, प्लान कर सकती है कि इसे क्या करना है और इसे क्या नहीं करना है। इनको परमिशन नहीं लेनी होती, बस एक बार ट्रस्ट बना दी इन्होंने और उस पर इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। जितने दिन की भी, जितने साल की भी ये ट्रस्ट होती है और फिर इसे एक्सटेंड कराते रहते हैं। तो इस पे ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। फ्लेक्सिबल, एनजीओ आर फ्लेक्सिबल इन ओन डिसीजन, दे आर नॉट बाउंड बाय द अदर साइड्स। तो ये किसी से बाउंड तो हो ही नहीं सकते। जब हमने पढ़ ही लिया कि ये इंडिपेंडेंट है, फ्लेक्सिबल है, क्विकर इन डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा क्विकर भी होते हैं। जैसे एनजीओ टेक क्विक डिसीजन इन रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ कम्युनिटी एंड डिसीजंस आर टेकन क्विकली, देयर सर्विस आर डिलीवर टाइमली टू द पीपल। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एनजीओ जाके उनकी हेल्प भी कर देते हैं। जैसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स किसी की आ गई है तो वहाँ भी एनजीओ जाते हैं ये लोग और वहाँ पे पूछताछ करते हैं भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपस में चाहे लड़ाई हुई हो या वैसे कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये भी जो क्विक तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाई मोटिवेशन। मेंबर और जो स्टाफ होते हैं एनजीओ के, ये बहुत हाई मोटिवेशन होते हैं एंड इंस्पिरेशन टू वर्क फ्रॉम द कॉज ऑफ द पीपल। दे आर्स ऑफ वर्क एंड नॉट क्लॉक बाउंड। तो ये इनको कोई लिमिटेड तो होता ही नहीं है, ना ये क्लॉक बाउंड होते हैं, ये तो कितने भी घंटे काम कर सकते हैं जितना भी इनको काम करने को मिले। तो और हाई मोटिवेशनल होते हैं, जो इसमें जुड़ते हैं लोग तो वो भी अपना पूरा मोटिवेट होते हैं, करते हैं लोगों को कि नहीं आप इससे जुड़िए, इसमें काम करिए। तो एक इनका एक ग्रुप बन जाता है। फ्रीडम इन वर्क, एनजीओ जो वर्कर्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपने फील्ड वर्क में, फ्रीडम उन्हें मिली होती है, वो उसे एंजॉय भी करते हैं। बहुत से एनजीओ जो हैं वो सेमिनार्स वगैरह करते रहते हैं तो इधर उधर उनको जाना भी पड़ता है, तो वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी होती है। इसके अलावा कैरिंग आउट द डेवलपमेंट स्कीम, बहुत सी चीज़ें स्कीम जो होती है उसमें भी ये विकास करते रहते हैं कि किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं हम। अपने छोटे छोटे इनके ऑफिस बना लेते हैं और उस पर ये फिर एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पीपल सेंटर्ड, पीपल आर एट द
Heart of NGOs. The plan thinks with the people and implement the same through the people. Thus, they learn the best form of the people and the replace the same the other groups. तो पीपल होते हैं ये मेन एनजीओ के हर्ट में दिल में रहते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही यही होता है एक ट्रस्ट बनाकर कि लोगों की मदद करो। तो मेन जो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये तो पहले ही खड़े होंगे, सब प्लान कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो इस तरह से ये इस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस करे थे ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके एनजीओज के। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप्स कर रहे हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं एनजीओज। एनजीओज जो हैं वो अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रिलीफ एंड वेलफेयर एजेंसीज होती हैं इसमें कुछ। तो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो generally respond during natural climates like flood, drought, earthquake, provide facility, education, health, drinking water, and essential service। बहुत एग्जाम्पल जैसे रिलीफ सर्विस, रेड क्रॉस, मिशनरी सोसाइटी, रामाकृष्ण मिशन। तो अगर बहुत सारे अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने नाम भी सुने होंगे। रेड क्रॉस एक मिशनरी है, वो बहुत लेवल पे काम कर रही है, उन्होंने एक अपनी सोसाइटी बना रखी है। रामाकृष्ण मिशन अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं, ये भी काम कर रही हैं। तो एक वेल इसके अलावा ये रिलीफ वाली भी कुछ एजेंसीज बना के काम करती हैं, जैसे कहीं फ्लड आ गया तो गवर्नमेंट तो जो हेल्प कर रही है प्लस एनजीओज भी उनकी हेल्प करते हैं फ्लड में, ड्रॉट में, अर्थक्वेक में। तो आपने वैसे सुना होगा जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया तो ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग अपने घर से इतना सामान दीजिए, कपड़े कोई पुराने हो वो दीजिए। तो बाकी ये फिर पहुंचाते हैं उस जगह पे अपने कन्वेंस से, अपनी ट्रांसपोर्ट से। तो इस तरह से इनका ये मेन काम होता है कि ये कैसे करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये जाते हैं। टेक्निकल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है ये अपने न्यू प्रोजेक्ट्स जो ओन प्रोजेक्ट्स हैं इस पे काम करते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं, अप्रोच मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी देखते हैं। तो इस तरह से ये अपना काम करते रहते हैं। कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं जिससे इस पे ये इंटरनेशनल तरीके से भी काम करते हैं। पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, जैसे ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करते हैं। एफिशिएंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक जो है एक नाम का है केयर। केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन। एक केयर करके है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीपल की हेल्प करता है। पॉपुलर डेवलपमेंट एजेंसीज। कुछ पॉपुलर डेवलपमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो ये डेवलप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कंट्रीज फंड देयर कंट्री पार्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट हो गए, ग्रास रूट हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, इस पे वर्क करती रहती हैं। अब ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन होते हैं। जो अहमदाबाद में है उसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, SEWS, सेवा सेवा करके आपने शॉर्ट फॉर्म इसका नाम सुना होगा। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और इसे जो है इसके अलावा जो है राजेंद्र सिंह, करुणा भरत, अरुणा रॉय, इस तरह के और भी ग्रुप्स होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। फिर आपका आता है ग्रुप्स एंड हिज नेटवर्क्स। ग्रुप्स कैसे होते हैं और उनके नेटवर्क्स कैसे होते हैं? तो एक तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा मामला आया था ग्रुप्स में, ट्रांसपेरेंसी देखी गई थी उसकी। एक चिपको मूवमेंट था, कितना लेवल पे चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन था। तो सेवक समाज था, आर्य समाज था। तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चले थे और फिर उससे बहुत बेनिफिट हुआ और लोगों ने इस पे काम किया। और
उसका बेनिफिट हुआ। तो द above classification of NGO is not mutually exclusive because one can strictly say this NGO come under any one of the particular type alone. In the practice, role of NGOs are mixed and heterogeneous. An NGO involved in advocacy may also carry out other. तो ये इसके पॉइंट्स ऐसे हो गए। नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्स ऑफ फाइनेंस। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ट्रस्ट बनती है, तो उसका कोई रिसोर्सेज भी होता होगा, सोर्सेज भी होता होगा कि वो फाइनेंस भी तो कहीं से लेगा। तो इंडियन एनजीओज हैव 3 बेसिक रिसोर्सेज। जो एनजीओ, चूँकि हमारा ये टॉपिक ही चल रहे हैं एनजीओ, तो इनके बेसिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, मनी कहाँ से लेते हैं? फंडिंग से। फंडिंग कैसे? जैसे देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल डोनर्स इंटरेस्ट इन द वर्क डन बाय एनजीओज इन इंडिया। बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से, या और भी जो हैं, तो सबके अपने अपने डोनर्स होते हैं, अपनी अपनी सोसाइटीज़ होती है। तो बाहर से भी बहुत इंटरनेशनल तरीके से, जैसे गुरुद्वारे के लिए बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग पैसा देते हैं, नहीं आ सकते तो वो बाहर से डोनेट करते रहते हैं। ऐसे इंडिया में और भी जैसे टेम्पल्स के लिए हो गए, तो सब इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। एनजीओज जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, वो भी एनजीओज जो बहुत वर्क करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको ये ढूंढ लेते हैं और इनको अपना ये फंड देते हैं कि हम इतना आपको हर महीने देंगे। जैसे अमृतसर में जो वो है गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे बहुत सारे डोनर्स हैं बाहर इंटरनेशनल, इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि 24 आवर्स लंगर चलता रहता है, सारा टाइम खाना बनता रहता है वहाँ पर, और कोई कमी नहीं आती है, हमेशा स्टॉक फुल रहता है। तो ऐसे डोनर्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। देर आर सम इंडियन इंस्टीट्यूशनल डोनर्स। अब इंटर इंटर ऐसा नहीं है कि सारे बाहर से ही सब डोनेट कर रहे हो, थोड़े इंडियंस अंदर भी होते हैं जो वो भी देते रहते हैं। तो ऑल्दो एक्सेस इज नॉट क्वाइट इजी एंड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल डोनर्स में भी एनजीओज और द गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल की तो बात हो गई, वो एनजीओ को देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, और जो इंडिया के होते हैं वो अपना भी पर्सनल भी करते हैं और एनजीओ को भी देते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना लास्ट जो प्रॉब्लम इतनी आई थी, तो लोगों ने सपोर्ट किया, एनजीओज ने किया, लोगों ने अपना पर्सनल सपोर्ट किया, जो जैसे कर सकता था उसने वैसे किया। तो इस तरह से फंडिंग का काम हो जाता है। अब आता है फंड जनरेशन। मनी रिसीव फ्रॉम द रेंट ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन इन फूड अंडर द कैटेगरी। इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम द लैंड। लैंड में भी किसकी लैंड? जिसके पास एग्रीकल्चरल हो, डेयरी फार्म्स हो। तो इस तरह से जो है मनी रिसीव कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, किस तरह से, जैसे आपने रेंट पे दे दी, या आपने अपने जो है एनिमल्स दे दिए डेयरी के लिए कि दूध बेचो और काम तुम करो सारा, और बाद में प्रॉफिट हाफ कर लेंगे। पोल्ट्री का हो गया, फिशरीज का हो गया, तो इस तरह से भी फंड इकट्ठा कर लेते हैं। जो एनजीओ होते हैं वो इस तरह के रूरल और ओरिएंटेशन में जाके भी अपना काम करते हैं, वहाँ पे भी लोगों से कहते हैं कि भाई आप इस तरह से हेल्प कर सकते हो, तो वहाँ से भी अपना फंड इकट्ठा करने लगते हैं। इनकम फ्रॉम द कंसल्टेंसी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कशॉप fall into the category. Interest on fund deposit or return investment from the business in any example of the food generation. फूड इस तरह से जो रिटर्न या इन्वेस्टमेंट का भी जो काम होता है, इंटरेस्ट पे लिया जाता है, तो ये भी एक फंड जनरेशन का ही एक पार्ट कहलाता है कि भाई इतना पैसा दिया गया तो इतना वापस भी करना है। एनजीओज भी उठाते हैं पैसा मार्केट से, और फिर बाद में पीछे से कहीं से कोई डोनर मिल गया तो उससे लेके वापस कर दिया। तो इस तरह से इनका एक फंड जनरेशन चलता रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आता है फंड रिस्किंग। रिस्क भी उठाना पड़ सकता है कभी कभी, जैसे कोई भी किसी भी वैसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ ने अपील कर रहे हैं पब्लिक से, या इस तरह से इंडिविजुअल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द थ्री मेथड्स। इन तरीके से जो है वो परेशानी भी डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। इट ऑल्सो रेजेस मैनी different type of problem which could actually with the surrogate counter arguments involvements unfamiliar approach and which call new skills of the attitude। तो ये जो रीज़न होते हैं इससे रिस्किंग भी उठाई जा सकती है कि इस तरह से रिस्क हो गया और फिर सब लॉस में चला गया। अब एडवांटेज क्या होते हैं एनजीओज के ओवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट और ये एनजीओ के जो होते हैं वो किस तरह से लेके चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो एनजीओ हैव ए नंबर ऑफ द एडवांटेज व्हाइल वर्किंग विद द पीपल इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसको कंपेयर करके चलते हैं कि किसका काम अच्छा है किसका काम नहीं अच्छा है, इस तरह से काम लेके चलते हैं। मोर एक्शन ओरिएंटेड। तो इसमें मोर एक्शन की अगर हम बात करें तो जो एनजीओ होते हैं वो बहुत नीड बेस्ड एक्टिविटी लेके चलते हैं। जैसे स्टडीज़ के ऊपर काम करेंगे, उनकी रिलेटेड सिचुएशन देखते हैं, नीडी पीपल्स की देखते हैं, फोकस करते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को, पुअर लोगों को। तो इस तरह की कम्युनिटी के साथ चलते हैं, जैसे वुमेन हो गई उसमें और पुअर पर्सन्स हो गए। तो ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेके चलते हैं कि उससे पता चले कि क्या चीज़ की क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। गवर्नमेंट को फोकस करते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, इस पे हमने फोकस किया। तो इस तरह के मोर एक्शन ओरिएंटेड काम भी करते रहते हैं। फ्लेक्सिबली इन फ्लेक्सिबल इन मेथड एंड प्रैक्टिस। जब बहुत एक्टिव होंगे तो फ्लेक्सिबल मेथड का भी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिसेस में भी जाएंगे ये। तो एनजीओ जो होते हैं वो जनरल तरीके से एक हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबल फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, मेथड का भी यूज़ करते हैं और फिर एक कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि हमने इस तरह से काम किया इस तरह से काम किया। तो एक मेथड लेके चलते हैं कि एक हायर डिग्री का कि हम इस तरह से भी वर्क आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर फोकस इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर ये डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं तो नेचुरली बात है फोकस करके ही चलेंगे। वर्क ऑफ एनजीओज tend to be more focus of the principal goal. The goal confusion is one of the important contribution factors for the limited section of the government programs in India. NGOs have the capacity to target on the specific population groups in the specific location। तो इस तरह से एक डेवलप प्रोग्राम शुरू किया कि क्या कर सकते हैं, या किसी को रोज काम दिलवाया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया, फोकस किया कि इतने लोगों को इन्होंने किसी फैक्ट्री खुलवाई और उसमें काम दिलवाया। तो एक डेवलपमेंट वर्क इनका शुरू हो जाता है। फिर होता है रिलेटिव इंडिपेंडेंस। इस पे ये फोकस करते हैं जिससे थोड़ा सा काम वैसे लेके चलते हैं प्राइमरी लेवल पे, या टारगेट ग्रुप्स लेके चलते हैं, मेथड लेके चलते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अडॉप्टेड इन प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलप प्रोग्राम्स लेके चलते हैं, सिलेक्टेड करते हैं टारगेट ग्रुप्स को, प्रोविज़न ऑफ द सर्विस को। तो इस तरह से एक जोड़ के काम शुरू करते हैं कि किस तरह से जोड़ के इंडिपेंडेंस काम लोकल पावर स्ट्रक्चर पे होए और उसमें सब जुड़े रहें और अपना अपना काम करते रहें। नेक्स्ट इज ह्यूमन टच। ह्यूमन टच तो उन्हें होना ही होता है, बिना ह्यूमन टच के तो काम ही नहीं होता है। तो एनजीओ जो होते हैं वो डेडिकेट करते हैं ह्यूमन टच को। दे कंपेरेटिवली मोर नियरर टू द कम्युनिटी एंड द आस्क क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर द एनी ऑर्डर डायरेक्ट फॉर द टाइम ऑफ नीड। वो किसी का वेट तो करते नहीं है, जिसको नीड होती है वो तुरंत जाते हैं, क्विकली वे में इनका काम चलता है और ना कोई इनका टाइम का बाउंडेशन होता है। अगर रात में भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो एनजीओ तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। एनजीओ जो होते हैं वो बहुत ही वेलेबल फैसिलिटी देते हैं, ब्रिंगिंग आउट द क्लोजर
जिसको भी इसकी ज़रूरत होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है डेवलपमेंट में, तो एनजीओ कैन ऑफर मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द पुअर इन वे ऑफ गवर्नमेंट। जो जितने गवर्नमेंट के भी और भी प्रोसीजर होते हैं उसमें भी ये अपना काम करते हैं। कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट अगर लेवल पे बात करें इनकी एफिशिएंसी, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू डिलीवर सर्विस इन ए कॉस्ट एफिशिएंसी वे टू कम्युनिटीज विच आर नॉट इजीली एसेसिबल बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से ये जो है उससे कॉस्ट एफिशिएंसी लेके चलते हैं और फिर इसमें इनको पता चलता है कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर इनका डिफरेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहता है, विद इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहते हैं, और जबकि जो एनजीओज वाले होते हैं वो फोकस करते हैं इस चीज़ को कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। तो इस तरह से ये अपना हाईलाइट करते रहते हैं कि गवर्नमेंट को का ध्यान जो है वो दिलाएं कि ये इस तरह से भी इस पे काम हो सकता है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जनरेट करती है रिसोर्स, और जो एनजीओज होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, वो अपना खुद निकाल निकाल के देते हैं कि इस यहाँ पे जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज खुद तैयार कर करके देते हैं। गवर्नमेंट में खुद अपना काम तैयार करके गवर्नमेंट से खुद कहना पड़ता है, पर ये अपना काम खुद देते हैं। अब मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रूल्स रेगुलेशन इस चीज़ को बहुत लेके चलती है, बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ रेगुलेशन लिमिटेड स्कोप लेके चलती है, जबकि एनजीओज होते हैं वो सिंपल और फ्लेक्सिबल होते हैं, बात समझते हैं, हेल्प करते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। कॉम्प्लिकेंस, अब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके काम में कॉम्प्लिकेंस होता ही है, ये कागज़ वो कागज़ डिपेंड करती है उनकी क्वालिटी, ये काम कैसा है, फिर नेचर होता है कि कैसा गवर्नमेंट का कैसा हिसाब है, कैसे होगा कि नहीं, सेंट्रलाइज होगा स्टेट होगा। और जबकि जो एनजीओज होते हैं वो अपना काम फटाफट कर देते हैं। अपना जो उनका ग्रुप्स होता है ग्रास रूट लेवल का, बिल्कुल नीचे से निकाल के ला के फटाफट उसको सेट करते हैं और उनका काम शुरू कर देते हैं। ये तो नॉर्मल की सारी बातें हो गई। अगर कोई हैंडीकैप है, वीकनेस है अगर उसके अंदर कोई, तो उस पर जो है वो एनजीओज वो उस पर कैसे अपना वर्क करेंगे। तो अगर कोई इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो एनजीओज जो हैं इस पर भी काम शुरू कर देते हैं और काम उनकी हेल्प करते हैं। ये हमारा जो अब टॉपिक है। तो जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी जिनका डेवलप हो रहा है, जैसे इंडोनेशिया हो गई, थाईलैंड हो गई, बांग्लादेश हो गई, इंडिया हो गई, तो यहाँ पे जो एनजीओज हैं वो बहुत प्ले इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। इन सभी देशों में सभी में काम चल रहा है। तो सब जगह जो है एनजीओज जो है वो बहुत ज़्यादा केस स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एनजीओज उस पर वर्क कर रहे हैं और उस पर डिस्कस रोल कर रहे हैं। तो एनजीओ जो होते हैं वो फील्ड टेस्टर्स भी होते हैं, हर एक फील्ड में जाकर टेस्ट करते हैं किस पे कहाँ किसकी ज़रूरत है, कैसा काम किस पे हो रहा है, लोकल नॉलेज इकट्ठी करते हैं, न्यू टेक्निक्स के बारे में पता करते हैं, उनके मेथड बारे में पता करते हैं, केस स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता करते हैं, तभी तो किसी को ये हेल्प करेंगे जब इन्हें गवर्नमेंट क्या कर रही है इन्हें सब पता होता है। आम जो पब्लिक होती है इन्हें कॉमन पीपल को तब भी इतना पता नहीं होता है। और जो डेवलप टेक्नोलॉजीज़ हैं जो प्रोवाइडिंग जो गवर्नमेंट जितनी भी फील्ड टेस्टिंग करती है, लोकल एडेप्शन करती है, फीडबैक होते हैं, डायमेंशन होते हैं, लोकल फंक्शनल होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब एनजीओ के जो फील्ड टेस्टर्स होते हैं इस पर ये वर्क करना शुरू कर देते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और एनजीओ के कुछ जॉइंट पार्टनर्स भी होते हैं जिस पे ये एनजीओ के संग मिलके काम करते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट ही हो गई है इनके संग, एनजीओ की जो है मोर एफिशिएंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के संग भी चलती है, ये उसके संग भी काम करती है।
इसके अलावा जो है वो और भी देशों के साथ ये मिल जाते हैं, जैसे और कोई दूसरे देश या कोई एनजीओ काम कर रहा है तो ये उसके संग मिल के भी काम शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी और भी एनजीओज हैं और देशों की जिससे ये इंडिया के मिलके काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया से रामकृष्ण मिशन है, ये और देशों में भी अपना एनजीओ का जो जितना भी हेल्प है वो और देशों को भी हेल्प करता है, मतलब उनकी भी मदद करता रहता है। एनजीओ जो होते हैं वो इनोवेटर्स कैसे होते हैं, इनोवेटर्स इन द सेंस जो इनका इंस्टीट्यूशनल या मैथोलॉजिकली जो वेज है ये कैसे करते हैं, स्केल अप कैसे करते हैं, इसका साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, स्पेंडिंग कैसे करते हैं। तो अगर वर्चुअली देखें तो एनजीओ जो हैं वो एक ओरिजिनेट करके एक इनोवेशन करते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस वर्किंग होता है, यानी लोकल ग्रुप्स होता है इनके पास, और स्पेशल रिक्वायरमेंट इनके पास होती है, और देखा जाए तो एक इनके पास बैकयार्ड इनकम भी होती है, जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इस तरह से अगर पूरा लेवल लेके चलेंगे तो इनके पास इनोवेटर्स हो जाते हैं और इस तरह से ये काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स इन विलेज डेवलपमेंट होते हैं। विलेज में जो भी कोई काम हो रहा है तो ये उनके भी फ्रेंड्स हो जाते हैं। और एनजीओ जो होते हैं वो नेटवर्कर्स भी होते हैं। नेटवर्किंग में बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन अमंग द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू रियलाइज एंड एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ themselves फॉर देयर क्लाइंट्स। तो इस तरह से ये उस पर भी काम करते रहते हैं और इस पर एक जनरल फीलिंग होती है एनजीओज की, जो इंडिविजुअली बेस्ट होती है, कलेक्टिवली लेस होती है। हाउएवर एनजीओज जो होता है उनका जो नेटवर्क एवोल्यूशन होता है वो शो करता है इनकरेज का, प्रोग्रेसिव वेरियस का। और बहुत साल अगर देखा जाए तो एनजीओ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट करते हैं प्रोमेटिंग का, इम्पोर्टेंट जो नेशनल लेवल का। तो इस तरह से बहुत उनका जो होता है इस पर ये अपना काम करते रहते हैं। अगर वैसे देखा जाए इनका नेटवर्क अगर बीइंग ऑर्गेनाइज देखा जाए तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, वुमेन इशू पे करते हैं, चाइल्ड लेबर पे करते हैं, हेल्थ पे करते हैं। तो इस तरह से भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल चलता रहता है। बहुत जैसे मैंने आपको भी बताया बहुत सी जगह पे ये अपना इनका सबका काम चल रहा है। इंडिया के मेन आप वैसे जान लो, जैसे एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन रूरल डेवलपमेंट, इसे अवार्ड कहते हैं। एक इंडिया में वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इन इंडिया, उसे वानी कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क, VANI इन इंडिया, वानी। एक इंडिया में जो है वो है औरविला रिस्क, ये भी इंडिया का है अब हमारा। तो ये जो है मेन फेमस है जिस पे ये अपना इनका काम हो रहा है और इस पे ये अपना कर रहे हैं। ओके, टाइम हैज़ ओवर नाउ एंड नेक्स्ट संडे I will continue this topic. Thank you all. Thank you, ma'am.